Hello, hello all of my friends. I'm Dr. Madhav Rate from STEM Medica India. STEM Medica India is the organization which providing stem cell therapy in India for various diseases. So now today we are talking about muscular dystrophy. Importantly, Duchenne muscular dystrophy. So let's join with me to understand what is Duchenne muscular dystrophy. आज हम लोग ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में जानकारी पाएंगे. सो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन. Probably woman is carrier and mostly affected are the males, boys. In woman, X gene will be a normal and second one X gene carry the default gene which cannot be produced dystrophin properly. So ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है कि ये आपके पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस को ट्रांसफर होता है. एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें जनरली क्या होता है कि बॉयज जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपेयर टू गर्ल्स. और वुमन जो होती है वो कैरियर होती है. वुमन में आपका क्रोमोसोम कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डबल एक्स है. उसमें वन जीन एक्स जो है वो नॉर्मल होता है और दूसरा जीन जो है वो डिफॉल्ट होता है. वो डिस्ट्रोफिन जीन कैरी करता है. वो एक जीन कैरी करता है और उसकी वजह से प्रॉपर डिस्ट्रोफिन फंक्शन होता नहीं है. जनरली it's showing the symptoms at the age of 3 or 4 years old. After that, because of lack of proper dystrophin gene, the protein's metabolism, protein functioning is not in a proper way in a skeletal muscles. All involve skeletal muscles. Due to that, the muscles will be weakened, flaccid, and lack of power. So the patient will show the symptoms of inability to stand, inability to walk, inability to move muscles, inability to move the muscles, and it starts showing the symptoms at the age of 3. As they pass away, the symptoms will be worsen. Or generally it affects cardiac muscles and respiratory muscles at the age of 19 or 20 years or onwards. So because of affection of these cardiac and respiratory muscles, patient will die. So the symptoms involve the muscles will be weak, the spine will be curved, that is called as scoliosis, and there is a fasciculation in a muscle. Muscle belly will be a big one, flattened, contracted. जनरली मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जनरली बॉयज अफेक्टेड होते हैं और ये सिम्टम्स आप पेशेंट को दिखना शुरू होते हैं एट द एज ऑफ 3 या 4 इयर्स में और उसके आगे में. तो जनरली क्या होता है कि ये डिस्ट्रोफिन जीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, वो प्रॉपर नहीं होता है. इसकी वजह से प्रोटीन जो होते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, फंक्शनिंग है, वो प्रॉपर नहीं होता और मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, कमकुवत हो जाते हैं और उसकी वजह से चलना फिरना ये सब अफेक्टेड होता है. वो जो अफेक्टेड पेशेंट है वो रन नहीं कर भाग नहीं सकता,
चलना भी वो किसी को सहारा दे के चलना होता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिम्टम्स और ज़्यादा वर्सन होते हैं। और क्या होता है कि लास्ट में तो कार्डियक और रेस्पिरेटरी जो श्वास लेने के लिए उपयुक्त तो मसल्स है वो अफेक्टेड होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट डाई, पेशेंट की डेथ होती है। तो जनरली मसल्स जो है वो बिग साइज में होते हैं, जैसे लोअर मसल्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड अपर एक्सट्रीमिटी, मोस्टली अफेक्टेड अपर एक्सट्रीमिटीज and lower extremities muscles. Initially, when it was diagnosed that Duchenne muscular dystrophy, and in a first stage, then the proximal muscles of upper limbs and proximal muscles of lower limbs mostly affected. Proximal muscles means forearm muscles and thigh muscles. Then later on, distal muscles are also affected. तो जनरली ये आपके अपर एक्सट्रीमिटीज के फोर आर्म्स के मसल्स शुरू में अफेक्टेड होते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज के आपके थाइस के मसल्स अफेक्टेड होते हैं। तो ग्लूटियस मसल्स भी अफेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट का सिटिंग, बैठना या फिर उठना, पूरा बॉडी का वेट कैरी करना, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में होते हैं। So what is exactly the prognosis? Prognosis is very bad. Patient can survive for a longer time because advance in cardiac and respiratory assisted equipments and new establishment, means cardiac और respiratory प्रॉब्लम जो होते हैं उसका टेक केयर कर सकते हैं, पेशेंट सर्वाइव होता है, पर इट्स लाइक अ हैंडीकैप. But he can't walk by himself, he can't stand, he can't run, that all problems will come. और आपका फिजियोथेरेपी वो इट्स लाइक असिस्टिव टेक्निक्स, मतलब वो असिस्ट करेगा आपका, पर जिन एंड ऑल दिस थिंग्स विल नॉट एलिमिनेटेड कंप्लीटली. तो व्हाट इज द रूटीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? अभी फिलहाल जो मेडिकल साइंस है उसमें क्या अवेलेबल है इन अ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? तो जनरली जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज लाइक एज अ सिम्टोमेटिक, स्टेरॉइड्स एंड ऑल दिस immunosuppressive drugs like which can use be for immunosuppression. So that can be as a symptomatic, but that will not cure problem completely. There is no perfect solution for Duchenne muscular dystrophy still. So what are challenging treatment and new techniques in this field? I can say the new technique and which is most promising one is stem cell and gene therapy. We can use that one. Stem cell therapy is showing the good improvement, but the drawbacks is in case of stem cell therapy we have to repeat the procedure at least every 6 months or at least once in a while in a year. वो स्टेम सेल थेरेपी आपको रिपीट करना होता है, बट दैट इज द वन परफेक्ट सोल्यूशन, आई थिंक सो. अगर कोई पेशेंट रिलेटिव स्टेम सेल थेरेपी 6 महीने में या 1 साल में ले सकता है तो पेशेंट सर्वाइव लॉन्गर टाइम, एंड somehow he can walk with assisted devices like walkers and all these things. He can walk and he can do his daily activities routinely by himself also. So that is a one promising treatment. Stem cell therapy में we can use combination of cells, or we can use autologous stem cells also along with few growth factors that will give a best result. And after that patient has to be follow the rehabilitation, physiotherapy. So if all these things will be carried out properly, then patient will survive for a longer time with, I can say, he can follow his routine activities also. So
दैट्स इट। स्टेम सेल में फायदा तो जरूर होता है, पर स्टेम सेल का प्रोसीजर रिपीट करना होता है इन केस ऑफ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। बट आई डोंट थिंक सो स्टेम सेल के अलावा कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव ऑप्शन है, बिकॉज अगर स्टेरॉइड और अदर immunosuppressive drugs if we can give the patient, then that have the साइड इफेक्ट्स स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो एक दिन या आपको कुछ समय के लिए देना नहीं होता है, वो कंटिन्यूली आपको पेशेंट को देना होता है। सो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ना कि फ़ायदा तो कम पर प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा होते हैं। सो इस सब चीज़ों में स्टेम सेल थेरेपी करने से फायदा होता है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल वन, और हम लोग स्टेम सेल्स देना। बट ड्रॉबैक्स एक ही है कि स्टेम सेल आपको रिपीट करना होता है प्रोसीजर, एटलीस्ट आपको साल में एक बार या 6 महीने में एक बार ऐसे करना होता है। पर उससे और स्टेम सेल के साथ अगर फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करे तो पेशेंट उसका रेगुलर एक्टिविटीज खुद कर सकता है। कार्डियक और रेस्पिरेटरी मसल्स भी अच्छे रहते हैं उसके। वैसे तो ये प्रोग्नोसिस ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में वैसे भी बैड है बहुत ज़्यादा। बट जो भी स्टेम सेल्स थेरेपी में एट आवर सेंटर, हमारे सेंटर में स्टेम मेडिका इंडिया में जो भी पेशेंट्स हुए ट्रीट किए गए, या फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड द सेंटर्स विच डूइंग स्टेम सेल थेरेपी और स्टेम सेल रिसर्च, सो द आउटकम इज प्रॉमिसिंग एंड गुड वन। तो अगर आउटकम की बात किया जाए तो स्टेम सेल थेरेपी से फ़ायदा डेफिनेटली अच्छा होता है, और रिजल्ट भी अच्छे हैं, उसके आउटकम भी अच्छे हैं। तो आई थिंक सो स्टेम सेल थेरेपी कैन बी, वी कैन चूज एज ए अल्टरनेटिव फॉर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। स्टेम सेल थेरेपी की अगर स्टेम मेडिका इंडिया में एनरोल करना है तो प्रोसीजर सिंपल है। पेशेंट हैज़ टू बी शेयर द रिपोर्ट्स ऑन ईमेल, the doctors will go through that report, he will scrutinize if anything, any other reports required, then he will ask the patient can connect, ask the doubts by call, by email, or by video call, anything. So in that way, if doctors think that it's acceptable case and it's showing the result, then we can call फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन, और उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाता है। सेंटर्स हमारे हैं इंडिया में, वेरियस सेंटर्स है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, सो वी कैन डू द ट्रीटमेंट। सो दैट्स इट, थैंक यू।